ایک چھوٹا سا پیرا لکھنا ہے اور بریلینٹ اسٹوڈنٹ کے لیے ہے. تو بریلینٹ اسٹوڈنٹ کے لیے کون سا پیرا ہے وہ دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد جو ایوریج اسٹوڈنٹ کے لیے ہے یا بلو ایوریج اسٹوڈنٹ کے لیے ہے تو وہ سارے پیرے ہم پڑھیں گے, اس کا اردو ترجمہ بھی کریں گے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب, لائک اور شیئر کرنا ہے. چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. تو پہلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کہتا ہے ایک کوالیفائڈ پرسن, ایک پڑھا لکھا شخص ہو جو ٹیچ پڑھاتا ہے اینڈ ٹرین اور سکھاتا ہے, ٹرین کرتا ہے. اس ہمیں از کالڈ, اسے کہا جاتا ہے اے ٹیچر, ایک استاد. ٹیچرز آر استاد ہیں, وہ ہیں اے بلڈر بنانے والے, آف دیئر نیشنز, قوم کو بنانے والے جو ہیں وہ بلڈرز ہیں. آئی ہیو, میں رکھتا ہوں یا میں جانتا ہوں, مینی ٹیچر, میں بہت سارے ٹیچر دیکھے ہیں. بٹ مسٹر علی از مائی بیسٹ ٹیچر, لیکن مسٹر علی از میرا بہترین استاد ہے. ہی از آور کلاس انچارج, وہ ہمارے کلاس انچارج بھی ہیں. ہی ٹیچ, وہ ہمیں پڑھاتا ہے. اس ہمیں, انگلش, وہ ہمیں انگلش پڑھاتا ہے. ہی ٹیچ اس, وہ ہمیں پڑھاتا ہے. ویری ویل, بہت اچھے طریقے سے. استاد وہی ہوتا ہے جو اچھے طریقے سے پڑھائے. ہز میتھڈ آف ٹیچنگ, اس کے پڑھانے کا جو انداز ہے, جو طریقہ کار ہے, از ویری نائس, بہت اچھا ہے. ہی آلویز, وہ ہمیشہ, ریمین, رہتا ہے. کول, وہ ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے, وہ کبھی غصہ نہیں کرتا, کبھی جذبات میں نہیں ہوتا. ہی از ویری کائنڈ, وہ بہت مہربان ہوتا ہے ٹو اس, ہمارے لیے. ہی از ویری ہارڈ ورکنگ, وہ بہت محنت کرتا ہے. ہی ٹریٹس, وہ سلوک کرتا ہے, اس میں, لائک ہز اون چلڈرن, وہ اپنے بچوں کی طرح ہمارے ساتھ سلوک کرتا ہے. ہی از اے ویری, وہ بہت اچھا ہے. ہی از ویری فاؤنڈ آف سپورٹس, وہ جو ہے کھیلوں کے بہت شوقین ہیں. ہی از اے گڈ اسپیکر, وہ ایک بہت اچھے مقرر بھی ہیں, تقریر کرنے والے بھی ہیں. وہ کہتا ہے ہی ایڈوائز, وہ ہمیں مشورہ دیتا ہے. ٹو سے پریئرز, نماز پڑھنے کا, ریگولرلی, روزانہ کی بنیاد پر. ہی از ایکسپرٹ, وہ ایکسپرٹ ہے, ماہر ہے. ان میں, ہز, اپنے سبجیکٹ, وہ اپنے سبجیکٹ میں بہت زیادہ ماہر ہے. ہز ڈریس, اس کا جو کپڑا ہے یعنی کہ سوٹ ہے, از ویری نیٹ اینڈ کلین, اس کا سوٹ بہت زیادہ صاف ستھرا ہے. ہی لکس, وہ دیکھتا ہے, ویری ایکٹیو, وہ بہت اچھا دکھتا ہے. اینڈ سمارٹ, اور سمارٹ دکھتا ہے. ہی از آلویز, وہ ہے ہمیشہ. ہی از آلویز, وہ ہمیشہ, ریڈی ٹو سرو اس, وہ ہمیشہ ہماری مدد کو تیار رہتے ہیں. ہی گیٹس اپ ارلی ایوری مارننگ, وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں. ہی آلویز, ہی سیز, وہ کہتے ہیں, ہز پریئرز 5 times a day, وہ 5 وقت کے نمازی ہیں. ہی ٹیکس, وہ لیتے ہیں, ود باتھ ڈیلی, وہ ہمیشہ نہاتے ہیں. ہز مشن از ٹو سرو ہز نیشن, وہ
उनका मकसद अपनी कौम को खिदमत करना है। वी लाइक, वो हमेशा चाहते हैं, पसंद करते हैं। हिम वेरी मच, वो उन्हें बहुत पसंद करते हैं। ही इज़ वेरी नाइस एंड वाइज, वो बहुत अच्छे और अक्लमंद हैं। ही इज़ वेरी नाइस, आई हैव ए ग्रेट लव फॉर हिम, मैं उनसे बहुत उन्स रखता हूँ। ये पैरा जो था ये था जी माई बेस्ट टीचर का, जो कि हमने पढ़ा। इसमें कुछ चीज़ें हाईलाइट करनी है कि जो उस्ताद होता है वो इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। हर एवरी उस्ताद की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें कुछ ऐसे उस्ताद होते हैं जो ज़िंदगी में भूलते नहीं हैं। उनका टीचिंग मेथड जो होता है वो बहुत प्यारा होता है। उनका रवैया, उनकी क्लास में हंसने हंसाने का, एक पढ़ाने का एक माहौल, दोस्त, एक फ्रेंडशिप माहौल जो होता है वो क्रिएट करते हैं, जिससे बच्चे मानूस हो जाते हैं और उस्ताद की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो करते हैं। तो ऐसे उस्ताद जो हैं इतने शफीक और निहायत मेहरबान उस्ताद बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे उस्ताद बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, कुछ में होती है 19-20 का फ़र्क होता है। लेकिन बात ये है कि जितना कुछ ऐसे उस्ताद आपको मिलेंगे, अगर 20 में से कुछ आपको पसंदीदा होंगे, वो बहुत प्यारा मेहनत से पढ़ाते भी होंगे, बात भी अच्छी करते होंगे, गाली गलोच वगैरह भी नहीं निकालते होंगे, बहुत सारे उस्ताद मिल जाएंगे। तो चलते हैं दूसरा पैरा देखते हैं। दूसरे पैरे में वो कहता है, ए टीचर टीच, एक टीचर पढ़ाता है। ही टीच एंड ट्रेन स्टूडेंट को पढ़ाता है, ट्रेन करता है, सिखाता है। ही इज़ क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब, वो इस जॉब के लिए क्वालिफाइड होता है, तालीम याफ्ता होता है। टीचर्स आर दी बिल्डर्स ऑफ देयर नेशन, जो टीचर्स हैं वो कौम के ममार हैं, कौम को बनाने वाले हैं। माई फेवरेट टीचर्स सर नदीम, मेरा जो फेवरेट और पसंदीदा टीचर है वो है सर नदीम। ही टीच, वो पढ़ाते हैं अस, हमें इंग्लिश। ही टीच अस, वो हमें पढ़ाते हैं वेरी बहुत अच्छा। ही इज़ ऑलवेज, वो हमेशा कूल, ठंडे रहते हैं, काइंड, मेहरबान हैं, एंड कॉन्सनट्रेट, और तवज्जो वाले हैं, तवज्जो दिलाते हैं, तवज्जो कराते हैं। ही इज़ आल्सो, वो हैं वेरी एक्टिव, बहुत ही चालाक, एंड स्मार्ट, बहुत ही होशियार और चालाक हैं। ही इज़ ऑलवेज, वो हमेशा रेडी, वो रहते हैं, तैयार रहते हैं, टू हेल्प हिज स्टूडेंट, वो अपने स्टूडेंट की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऑल द स्टूडेंट लाइक, तमाम बच्चे, स्टूडेंट, तालिब इल्म, लाइक जैसे लाइक एंड लव हैं, उनको पसंद करते हैं और उनसे प्यार रखते हैं। ऑल द टीचर्स, तमाम बच्चे, इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल के, आर क्वाइट गुड एंड एबल, तो हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं बहुत ही अच्छे और शरीफ और बहुत ज़िम्मेदार हैं। बट सर नदीम इज़ दी बेस्ट, सारे जो टीचर उनमें से सर नदीम बेस्ट है। तो आगे चलते हैं। ये था एवरेज स्टूडेंट के लिए। अब जो लो स्टूडेंट हैं उनके लिए पैराग्राफ में पढ़ रहे हैं। तो है, ये टीचर टीच, एक टीचर है वो टीच करता है स्टूडेंट को। ही इज़ क्वालिफाइड, वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए बहुत क्वालिफाइड, बहुत ही पढ़े लिखे हैं। माई फेवरेट टीचर इज़ सर नदीम, मेरा जो पसंदीदा उस्ताद है
वो सर नदीम। उसके बाद है ब्रिटिश, वो पढ़ाते हैं आसाम में, इंग्लिश पढ़ाते हैं। ही इज़ ऑलवेज कूल, वो बहुत ठंडे और मेहरबान हैं। काइंड, रहम दिल हैं। एंड कॉन्सेंट्रेट, और तवज्जो दिलाने वाले हैं। ही इज़ आल्सो, वो बहुत वेरी एक्टिव एंड स्मार्ट, वो बड़े चालाक और बड़े स्मार्ट हैं। ही इज़ ऑलवेज, वो हमेशा रेडी, वो रेडी रहते हैं कि हेल्प, मदद के लिए, हेल्प हिज स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट की मदद के लिए तैयार रहते हैं। ऑल द स्टूडेंट लाइक, तमाम स्टूडेंट लाइक जैसे और लव है, तमाम स्टूडेंट उनको लव और प्यार करते हैं। आगे चलते हैं। ऑल द टीचर्स, तमाम जो उस्ताद हैं इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल के, आर क्वाइट हैं, खामोश, गुड एंड एबल, बहुत अच्छे और बेहतरीन हैं। बट सर नदीम इज़ बेस्ट, तो सर नदीम जो हैं बहुत अच्छे अखलाक के हैं। आगे है, वो कहता है एक गुड टीचर इज़ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, एक अच्छा उस्ताद खुदा की नेमत होता है। तो उस्ताद के बारे में हमने यहाँ पढ़ा और देखा। तो ये तीनों पैराग्राफ जो हैं ये स्टूडेंट के लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, तो उनके लिए ब्रिलियंट पैरा है, उसके बाद एवरेज पैरा है, उसके बाद लो एवरेज जो है, बिलो है, वो है। तो टीचर के लिए आप अपनी तरफ से भी कुछ फ़िक्रे बना कर लिख सकते हैं। जिस तरह इसमें लिखा हुआ था कि हर टाइम प्रे करते हैं, टे के बात लेते हैं, या वो बहुत अच्छे हैं, वो मोटरसाइकिल पर आते हैं, या उनकी अपनी सवारी है, या वो उनके ये मशगला है, या वो इस चीज़ के माहिर हैं, या वो इस चीज़ का मुतालिया करते हैं। तो इस तरह अपनी तरफ से भी फ़िक्रे आप बना कर लिख सकते हैं। तो स्कूलों में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होता है उस्ताद का अदब। अगर आप उस्ताद का अदब कर रहे हैं या करते हैं तो आपको टीचर सब अच्छे मिलेंगे, बहुत प्यारे मिलेंगे। तो इस तरह मैं ये समझता हूँ कि तो उस्ताद को जितना आप रिस्पेक्ट देंगे उतना ही आप आला मकाम पाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनमें सारे तो एक जैसा एहतराम नहीं करते, उनमें फ़र्क होता है। लेकिन बात मज़े की ये है कि जितने भी अदब करने वाले लोग हैं वो किसी न किसी मकाम मर्तबे पर पहुंच चुके हैं, बहुत इज़्ज़त बना चुके हैं। कोई किसी कारोबार में, कोई किसी नौकरी में, या कोई किसी अपने तिजारत में। तो जो इज़्ज़त जिन्होंने नहीं की थी, चाहे उनके पास पैसा या इस तरह की सहूलियात मौजूद थी, वो आज भी ख्वार हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। क्योंकि अगर आप टीचर की कदर नहीं कर सकते तो अपने वालिदैन की आप कदर नहीं कर सकते। वो भी रूहानी बाप होता है, तो उससे आपने बहुत कुछ सीखना होता है। उसको भी आप इस तरह इग्नोर करें या उसको टीचर की इज़्ज़त नहीं करते तो घर में आपकी इज़्ज़त भी नहीं होगी, आपको भी इस तरह ज़लील ख्वार होना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको स्कूलों और हर जगह जहाँ भी उस्ताद मिले, अदब के साथ, तमीज़ के साथ, एक पैर अखलाक के साथ। और लोग पहले जो होते थे वो इनकी दिल की ख्वाहिश रहती थी कि उस्ताद मिले, हम उनसे मिले। आजकल उस्ताद सामने आ जाए तो लोग सलाम भी नहीं करते, बल्कि दूसरी तरफ मुँह फेर लेते हैं कि उस्ताद आ रहा है। तो इस तरह ये आपको चाहिए कि इस तरह ना किया करें। आपकी इज़्ज़त में कोई फ़र्क नहीं आता, बल्कि इज़्ज़त बढ़ती है।
آج تک اتنا ہی میکس بھی دیتے ہیں.